Welcome to your maths class. We are on exercise 3.2. Today we will start from question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? Some equations are given to us. Pair of linear equations are given. We have to tell that whether which pair is consistent or which pair is inconsistent. If any pair is consistent, then obtain the solution graphically. Then we have to find solution of that pair on graph. What is the question? कि हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं लीनियर इक्वेशंस के और हमने ये देखना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट हैं तो हम उन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. सो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. So let us start. Here first and second equations are given. We will first take the coefficients a1. First equation में a1, b1 and c1 हम देखेंगे और from second equation we will get a2, b2 and c2. So here coefficient of x is 1. It means a1 is 1. Coefficient of y is 1, b1 is 1 and constant term is 5, means c1 is 5. In second equation a2 is 2, b2 coefficient of y that is 2 and c2 constant term which is 10. First of all we will check their ratios. a1 upon a2 which is equal to 1 upon 2. a1 1 and a2 is 2. Then next ratio b1 upon b2. b1 is 1 and b2 is 2. And third ratio c1 upon c2 which is 5 upon 10 which is also equal to 1 by 2. So here all the ratios give the same answer. It means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो यहाँ पे तीनों रेशियोज इक्वल है. सो दिस इज द केस ऑफ मैनी सोल्यूशन मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस. तो ये जो कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं दीज आर आल्सो कंसिस्टेंट. सो दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट. Now in question it is mentioned that if the lines are consistent then we have to find their solution graphically. इट मीन्स कि अब ये लाइंस कंसिस्टेंट है तो हमने इन इक्वेशंस के जो सोल्यूशन हैं उन्हें हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो उसके लिए हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी. लाइक फर्स्ट इक्वेशन इज़ जैसे हमारे पास फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो इसके हम पर्टिकुलर 3 सोल्यूशंस निकाल लेते हैं. एक बार हम x को 0 ले लेते हैं. लेट x इज इक्वल टू 0. We will get 0 plus y is equal to 5 which implies y is equal to 5. It means x is 0 then y 5. First set. Second time y 0 ले लेते हैं. Let y is equal to 0. It means x plus 0 is equal to 5 which implies x is equal to 5. So when y is 0 x is equal to 5. Similarly we can take third solution. x की कोई भी x या y किसी की भी वैल्यू ले लेते हैं. मैं x ले रही हूँ 1. इट इम्प्लाइज अब x की जगह पे 1 प्लस y इज इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 minus 1. So y is equal to 4. So the next one y is equal to 4. Now in the same way we will find the solution of second equation also. 2x plus 2y is equal to 10. Let x is equal to 0. In first पहले x 0 ले लेते हैं. Next time we will take y is equal to 0. So when we take x is equal to 0, so here 2 into 0 plus 2y is equal to 10. ये टर्म 0 हो गई. Finish. So 2y is equal to 10. It means y is equal to 10 over 2 that is 5. तो when x is 0 y is equal to 5. इसी तरह हम y 0 ले लेते हैं. लेट
y is equal to 0, then it implies 2x plus 2 into 0 is equal to 10, which is 2x is equal to 10 and x is equal to 10 by 2, which is 5. So when y is 0, x is equal to 5. इस तरह मैं x को ले रही हूँ 2, let x is equal to 2. It implies 2 into 2 plus 2y is equal to 10. 4 plus 2y is equal to 10. Shifting 4 on that side, 2y is equal to 10 minus 4 is equal to 6. Y is equal to 6 upon 2, 3. So third solution is x2, y3. Now we will represent these equations on graph now. Now plotting the points. First point is x0, y5. Second is x5, y0. And third is x1, y4. 0, 5. Then 1, 4. And here is 5, 0. Now joining these 3 points, we will get a straight line. तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना हमने. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सॉल्यूशंस फॉर सेकंड इक्वेशन आर x0, y5, x5, y0 and x2, y3. x0, y5 same point, x5, y0 same point, and third point is x2, y3, x2 and y3. So second line is also represented by the same line. Means first और second दोनों lines एक दूसरे के ऊपर lie कर गई. It means these lines are coincident lines. So that's why these are consistent also. So this is the graph of the first part of question number 4. And here we will say these equations have infinite number of solutions, or we can say many solutions. So this is the answer. Means इन दोनों इक्वेशंस के एक से ज़्यादा सोल्यूशन बन रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन रहे हैं. मतलब दोनों लाइंस में infinite number of common points हैं. That's why they have infinite number of solutions. Part is first equation x minus y is equal to 8. Second 3x minus 3y is equal to 16. तो इनमें से पहले a1, b1, c1 और सेकंड में से a2, b2, c2 की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं. c a1 इज़ 1. अब x कोफिशिएंट 1 है. b1 इज़ -1. y के आगे कोई नंबर नहीं है, मीन्स इट्स कोफिशिएंट इज़ 1 और आगे नेगेटिव साइन है, तो वो भी साथ में लेंगे. c1 इज इक्वल टू 8. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन a2 इज़ 3, b2 इज़ -3 एंड c2 इज़ 16. तो पहला काम a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2. तो a1 ओवर a2 की वैल्यू आ गई 1/3. b1 ओवर b2 नेगेटिव साइन कैंसिल, वैल्यू इज़ 1/3 एंड c1 ओवर c2 आफ्टर कटिंग वैल्यू इज़ हाफ. अब यहाँ पे पहली दो रेशियोज इक्वल हैं, थर्ड इज़ अनइक्वल. सो here a1 over a2 is equal to b1 over b2, which is not equal to c1 over c2. So this is the case of no solution. So these अगर no solution है means दोनों lines में कोई common point नहीं है. It means these lines are inconsistent. So these lines are inconsistent. और क्वेश्चन में ये स्टार्टिंग में मेंशन किया गया कि अगर कंसिस्टेंट हैं तो उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा. सो आवर क्वेश्चन विल फिनिश हियर. नाउ इन थर्ड पार्ट, फर्स्ट इक्वेशंस आर गिवन 2x + y - 6 and 4x - 2y - 4 is equal to 0. मैंने सभी कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं. नाउ वी विल फाइंड द रेशियोज. a1 over a2 is 2/4, that is 1/2. b1 over b2 is 1 upon -2.
and C1 upon C2 is minus 6y minus 4, that is 3 by 2. Now first ratio is 1 by 2, second is minus 1 by 2. So here A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. So this is the case of unique solution. Therefore these lines are consistent. Now if these lines are consistent we have to show them graphically. तो उसके लिए हम दोनों इक्वेशंस के पहले सॉल्यूशंस निकालेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 2x प्लस वाई, 6 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 6. सो टेकिंग x is equal to 0, then we will take y as is equal to 0. Now let x is equal to 0. It implies 2 into 0 plus y is equal to 6, which implies ये टर्म होगी 0, y is equal to 6. x is 0, then y is 6. Similarly, let y is equal to 0. हमारे पास आ जाएगा 2x plus 0 is equal to 6. And 2x is equal to 6, which implies x is equal to 6 by 2, that is 3. So when y is 0, x is equal to 3. Now third, let y is equal to 2. So what we will get? 2x plus 2 is equal to 6. So here 2x is equal to 6 minus 2, which is 4, and x is equal to 4 by 2, that is 2. So when x is equal to 0, y is equal to 0, x is also, y is equal to 2, x is also 2. Similarly we will find the solution of second equation. तो पहले x को 0 ले लिया, then 4 into 0, ये 0 बन गया, minus 2y is equal to 4. Minus 2 will divide the 4 now, and y is equal to minus 2. It means when x is 0, y is equal to minus 2. Next time y 0 ले लिया, y 0 लिया तो हमारे पास 4x minus 2 into 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी. 4x minus 2 into 0 is equal to 4. तो ये 0 हो गया. So 4x is equal to 4 and x is equal to 4 by 4, which is 1. So when y is 0, x is equal to 1. Similarly we will take y is equal to 2. 4x minus 2 into y की जगह क्या आएगा यहाँ पे 2. 2 to the 4 is equal to 4. अब इस 4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, इट विल ऐड 4 plus 4, इट गिव्स 8, और ये 4 उसे डिवाइड कर देगा एंड वैल्यू विल बी 2. इट मीन जब y 2 है तो x भी 2 हो जाएगा. नाउ वी विल शो दीज सॉल्यूशंस ऑन ग्राफ. नाउ इन फर्स्ट इक्वेशन solutions are x0, y6. x0, y 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here it comes x0, y6. Second point is x3, y0. 1, 2, 3, y0. x3, y0. Third is x2, y2. x2 and y2. Now joining these points, now similarly equation graph of second equation we will draw now. Now in second equation the solutions are x0, y minus 2. So we plot x0, y minus 2, x0 and y minus 2. Second point is x1, y0, x1, y0, 1, 0, and third point is x2, y2. Now we will join these 3 points also. तो ये भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई. तो अब दोनों लाइंस हमारी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल रही हैं, और वो पॉइंट हमारा कौन सा है 2, 2. इट मीन जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो इन दोनों इक्वेशंस का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया. तो इट मीन्स दीज 2 इक्वेशंस हैव अ यूनिक सोल्यूशन एट पॉइंट 2, 2.
इन दोनों लाइंस का जो सोल्यूशन बना वो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है. सो वी विल राइट हियर दैट both the equations are intersecting at point 2, 2. Therefore x is equal to 2 and y is equal to 2 is unique solution of these lines. Now fourth part is equations are 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. a1, b1, c1 and a2, b2, c2 सभी वैल्यूज हमने ले लेनी है. तो now we will find their ratios. a1 upon a2 2 by 4 that is 1 by 2. b1 upon b2 minus 2 upon minus 4 1 by 2 and c1 over c2 is minus 2 upon minus 5 that is 2 upon 5. In this case a1 over a2 भी half है, b1 over b2 half है और c1 over c2 different है. So this is the case where a1 over a2 is equal to b1 over b2 but not equals to c1 over c2. So a1 over a2 b1 over b2 दो ratios equal है but c1 over c2 के equal नहीं है. Therefore this is a case of no solution. It means the lines are inconsistent. Therefore these lines are inconsistent. So if these are inconsistent, so then there is no need to show them graphically. Now question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. What is question here? Half the perimeter of a rectangular garden. एक रेक्टेंगुलर गार्डन उसके पेरीमीटर का हाफ whose length is 4 meter more than its width, जिसकी लेंथ width से 4 मीटर ज़्यादा है is 36. तो 36 क्या दिया गया? 36 दिया गया हाफ ऑफ द पेरीमीटर, जिसका स्टार्टिंग में जिसके बारे में बात की गई है. क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length and breadth are like this is 36. मीन्स कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, उसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है. नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. तो हमने इस गार्डन की डायमेंशंस फाइंड करनी है. तो सबसे पहले लेंथ एंड ब्रेथ उन्हें एज्यूम करेंगे. इसमें लेंथ और ब्रेथ को पहले हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेथ इज इक्वल टू वाई. हम इस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते हैं, 2 वेरिएबल से भी. तो अगर हमें क्योंकि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा की इक्वेशंस की कर रहे हैं तो हम 2 वेरिएबल लेके चलेंगे. लेंथ को x मान लेंगे एंड ब्रेथ वी विल एज्यूम एज y. सो लेट अस स्टार्ट. तो मान के चलते हैं कि लेंथ ऑफ गार्डन इज x मीटर एंड ब्रेथ इज y मीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ देयर पेरीमीटर. अब पेरीमीटर ऑफ गार्डन, क्योंकि रेक्टेंगुलर गार्डन है तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन हमारे पास है 36 मीटर विच इज गिवन, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज गिवन दैट इज 36 मीटर. और यहाँ पे हम पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36. So here it is length plus breadth is equal to 36, means length is x, breadth is y is equal to 36. So this is equation number 1. अब जो नेक्स्ट चीज इसमें दी है, लेंथ इज 4 more than its width. दैट मीन्स जो लेंथ है जिसे हमने x माना है वो किसके इक्वल है? विड्थ से, ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा. इट मीन जितनी ब्रेथ है उसमें प्लस 4 कर देंगे, दैट विल बी द लेंथ. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन.
नाउ हियर बोथ द इक्वेशंस वी गेट, इसे भी हम अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले y को हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे on left hand side, it will be x minus y is equal to 4, सेकेंड इक्वेशन। तो अब इसे अगर हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x plus y is equal to 36, so let x is equal to 0. It implies 0 plus y is equal to 36. It means अगर x 0 है तो y कितना है 36. Second, let y is equal to 0, then x is equal to x plus 0 is equal to 36 means x is equal to 36. और इसी तरह कोई एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, let y हम ले लेते हैं 10, then x plus 10 is equal to 36 and x is equal to 36 minus 10, that is 26. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आ गए। फर्स्ट वी फाउंड when x 0 y 36, y 0 x 36 and last y 10 x 26. तो इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे। सेकेंड इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इसे हम x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 इस फॉर्म में भी यूज कर सकते थे। दैट इज आवर ओन विश कि हमने किस फॉर्म में यूज करनी है। दोनों फॉर्म से इजीली हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पहले मैं x ले रही हूँ 0, इट इम्प्लाइज 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अब माइनस को शिफ्ट किया उधर, सो वाई इज इक्वल टू माइनस 4। लेट वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस 0 विल बी इक्वल टू 4 and x is equal to 4. इसी तरह let y is equal to 1, x minus 1 is equal to 4 and x is equal to 4 plus 1, that is 5. तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन कौन कौन से आ गए। फर्स्ट हमने लिया x 0, y minus 4, y 0, x 4 and y 1 x 5. Now we will plot them on graph. Now we will plot the graphs. In first equation x 0 y 36, x 0 y 36, तो मैंने यहाँ पे 5 5 की स्केल ली हुई है along x axis and along y axis. Now x 0 y 36, here is 30 35, 35 के बाद हमारे पास 36, x 0 y 36. नेक्स्ट इज x 36 y 0, x 36 35 के बाद आएगा और y 0, एंड लास्ट इज x 10 x 26 y 10, 26 और y 10. Now we will join these 3 points. दिस इज द फर्स्ट लाइन। इसी तरह सेकेंड के हमारे पास सोल्यूशन है x 0 y माइनस 4, x 0 y माइनस 4, तो 5 से पहले यहाँ पे पॉइंट आ गया। उसके बाद x 4 y 0, 5 से पहले 4 y 0, दिस वन x 5 y 1, x 5 y 1. So here is 0 और 1 का पॉइंट यहाँ पे। Let us join these 3 points again. So here both the lines are intersecting at a point. तो इस पॉइंट की रीडिंग देखते हैं हम। Along x axis it is at 20, so x coordinate is 20. और y एक्सिस के लिए हमारे पास 15 के एकदम बाद आ गया, तो ये 16 हो गया, 16. सो x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस.
तो इट मीन्स कि अगर दोनों का सोल्यूशन 20 16 है, इट मीन्स x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें वही लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो दैट मीन्स x वाज रिप्रेजेंटिंग लेंथ, तो लेंथ 20 आ गई, एंड y वाज रिप्रेजेंटिंग ब्रेथ, इट मीन्स ब्रेथ आ गई हमारे पास 16। तो इट मीन्स फ्रॉम ग्राफ वी विल गेट दैट बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, both lines are intersecting at x is equal to 20 and y is equal to 16. Therefore length is equal to 20 meter and breadth is equal to 16 meter. This is the answer. Now it was the ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल मेथड, जो हमने क्वेश्चन किया ये ग्राफिकल मेथड से किया। अब सेम क्वेश्चन को अगर बिना ग्राफ के हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सो हियर इज अनदर मेथड, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनकेस ये ग्राफ की फॉर्म में हमें क्वेश्चन ना आए, एग्जाम में पूछा जाए, विदाउट ग्राफ पूछा जाए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लेंथ मानी थी, लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। y मीटर। Now according to question, जो फर्स्ट है that half of perimeter is 36 is equal to 36. हाफ इंटू पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का हमने लिखा था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36. हेयर 2 and 2 विल कैंसल, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ x है प्लस ब्रेथ y इज इक्वल टू 36. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और जो सेकंड कंडीशन हमारे पास थी वो थी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। इट मीन्स लेंथ किसके इक्वल है, ब्रेथ प्लस 4. लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4 मीटर. तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. तो अब अगर हम देखें, हमें सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू हमारे पास है और हम x की ये वैल्यू जो हमारे पास दी गई है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पे x लिखा है वहाँ फिल कर सकते हैं. नो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. तो अब x की वैल्यू क्या है, y प्लस 4. दैट मीन यहाँ पे हम x की जगह क्या लिखेंगे, y प्लस 4. यहाँ पे x की वैल्यू हो गई y प्लस 4 और नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वो भी ऐड हो रही है, वो भी y है, इज इक्वल टू 36. तो अब ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है जो इजीली सॉल्व की जा सकती है. y प्लस y इज 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36. फर्स्ट शिफ्टिंग 4, 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 32 एंड y इज इक्वल टू 32/2, 16 मीटर. So here we get the value of y. अब x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन है y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. अगर यहाँ हम y की वैल्यू फिल कर दे तो इन्हें सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी. Now put this value in equation 2. तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, x इज इक्वल टू y प्लस 4 और y कितना है 16 प्लस 4. So x is equal to 20 meter. Hence we found that length is 20 meter and breadth is 16 meter. This is the final answer. So it is enough for today's lecture. In case of any query or any doubt, students, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.